بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جنریشن کا ٹاپک ہم نے سٹارٹ کیا تھا، فرسٹ جنریشن لاسٹ لیکچر میں نے پڑھا دی تھی۔ آج ہم پڑھیں گے سیکنڈ جنریشن کے کمپیوٹر کیسے تھے، سیکنڈ جنریشن کے کمپیوٹرز میں کون سی ٹیکنالوجی استعمال ہوئی اور وہ ٹیکنالوجی کب بنی، کس نے بنائی، اس کے کیا فیچر تھے۔ ویکیوم ٹیوب سے اگر ہم اسے کمپیئر کریں تو وہ ویکیوم کی نسبت کس طرح سے بہتر تھی۔ تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے، سیکنڈ جنریشن آف کمپیوٹر۔ تو جو فارمیٹ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے اس میں سب سے پہلی ہیڈنگ جو آتی ہے وہ ٹیکنالوجی کی ہیڈنگ ہے۔ ہر جنریشن میں جب ہم نے اسے لکھنا ہے، اٹیمپٹ کرنا ہے اس ٹاپک کو، تو پہلی ہیڈنگ ہر جنریشن میں ٹیکنالوجی کی آئے گی۔ تو ٹیکنالوجی میں ایک ہی کامن سٹیٹمنٹ جو میں نے بتائی ہوئی ہے ہر جنریشن میں لکھنی ہے، وہ کیا ہے؟ The technology that was used in second generation of computer was، آگے جو بھی ٹیکنالوجی ہے تھرڈ لکھیں گے تو یہی ہیڈنگ اور سیم سٹیٹمنٹ آئے گی۔ تو اس میں جو ٹیکنالوجی استعمال ہوئی وہ تھی ٹرانزسٹر۔ سیکنڈ جنریشن میں جو ٹیکنالوجی استعمال ہوئی وہ کون سی تھی؟ ٹرانزسٹر۔ اب پہلے ہم نے ٹرانزسٹر کو ایکسپلین کرنا ہے، یہ کیسا تھا۔ تو نیکسٹ ہیڈنگ ہماری آ جائے گی ٹیکنالوجی کی، ٹرانزسٹر۔ اب اس کو ہم نے کمپیئر کرنا ہے ویکیوم ٹیوب کے ساتھ کہ ٹرانزسٹر کیسا تھا اور ویکیوم ٹیوب کیسی تھی شروع میں۔ تو وہی پوائنٹس کامن پہلے تو میں بتا دوں جو کامن پوائنٹ ہم نے پڑھے ہوئے ہیں۔ ایک تو سائز کے حوالے سے، ٹرانزسٹر سائز میں بہت چھوٹا تھا ایز کمپیئر ٹو ویکیوم ٹیوب۔ اگر ہم ٹرانزسٹر کو ویکیوم کے ساتھ کمپیئر کرتے تو ٹرانزسٹر سائز میں بہت چھوٹا تھا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ یہ جو وائٹ بورڈ لگا ہوا ہے، فار ایگزامپل اگر اتنے سائز کی ویکیوم ہے فار ایگزامپل، تو یہ جو بورڈ مارکر ہے اتنے سائز کا آپ ٹرانزسٹر کر لیں، سائز کا کمپیریزن بتا رہا ہوں کہ ویکیوم ٹیوب کتنی بڑی تھی اور ٹرانزسٹر سائز میں کتنے ہو گئے۔ سائز کے حوالے سے ایک تو ہم لکھیں گے اسمالر دین ویکیوم، یہ ویکیوم سے چھوٹا ہو گیا، اسمالر دین ویکیوم ٹیوب۔ پھر اس میں جو میجر پوائنٹ، جو میجر بات ہم نے بتانی ہے کہ سائز تھا کتنا۔ 200 ٹرانزسٹرز were about the same size as one vacuum tube۔ کہ 200 ٹرانزسٹر اتنے سائز کے تھے جتنے سائز کی ایک ویکیوم ٹیوب تھی۔ اب آپ خود کمپیریزن کر لیں کہ ویکیوم ٹیوب اگر سائز میں اتنی ہے تو ٹرانزسٹر سائز میں چھوٹا ہو گیا، اور جتنی جگہ ایک ویکیوم ٹیوب گھیرتی تھی اتنی جگہ پہ اب ہم 200 ٹرانزسٹر لگا سکتے تھے۔ تو سائز کے پوائنٹ میں پہلے ہم لکھیں گے ٹرانزسٹر کا سائز ویکیوم کی نسبت چھوٹا ہو گیا، اور 200 ٹرانزسٹر اتنے سائز کے تھے جتنے سائز کی ایک ویکیوم ٹیوب تھی۔ پھر سپیڈ کے حوالے سے پوائنٹس، پروسیسنگ سپیڈ much faster than vacuum، much faster than vacuum۔ کہ ٹرانزسٹر کی سپیڈ ویکیوم ٹیوب کی نسبت بہت تیز ہو گئی، بہت زیادہ ہو گئی۔ اگر ہم سپیڈ کو دیکھیں کتنی سپیڈ ہو گئی تو ہماری بک کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ٹرانزسٹر کین ورک
40 times faster than vacuum। अब पॉइंट वही है, सिर्फ एक नया सेंटेंस आ गया कि ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब की निस्बत 40 गुना तेज काम कर सकता था। तो इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि ट्रांजिस्टर की स्पीड वैक्यूम ट्यूब की निस्बत कितनी ज्यादा थी। तो ट्रांजिस्टर कैन वर्क 40 टाइम्स फास्टर देन वैक्यूम ट्यूब। ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब की निस्बत 40 गुना ज्यादा तेजी से काम कर सकता था। ये दो पॉइंट आ गए। प्राइस के हवाले से अगर हम देखें तो कीमत में ये लेस एक्सपेंसिव, इट वाज लेस एक्सपेंसिव देन वैक्यूम, इट वाज लेस एक्सपेंसिव देन वैक्यूम ट्यूब। कीमत के लिहाज से ये वैक्यूम ट्यूब से काफी सस्ता था, बहुत ही सस्ता था। तो ये 3 पॉइंट जो कॉमन पॉइंट है, मैंने बताया था हर जनरेशन के अंदर टेक्नोलॉजी में हम लिख सकते हैं। चौथा पॉइंट भी आप इसमें लिख दें कि इसकी पावर कंजम्पशन उसकी निस्बत वैक्यूम की निस्बत कम थी। अपने पास से वो जो 2-4 पॉइंट अलग से मैंने बताए हुए वो भी आप बीच में ऐड कर सकते हैं। तो ये लिखने के बाद आप ट्रांजिस्टर का कुछ इंट्रोडक्शन और भी यहां पर दिया गया है। वो क्या है? ट्रांजिस्टर वाज इन्वेंटेड इन 1947। ट्रांजिस्टर कब बना? 1947 में। ट्रांजिस्टर वाज इन्वेंटेड इन 1947। ये 1947 के अंदर बना। कहां पर बना? एट बेल लैब्स। ट्रांजिस्टर वाज इन्वेंटेड एट बेल लैब्स। बेल लैबोरेटरीज के अंदर से बनाया गया। इसे बनाया किसने? जॉन ब्रैडन, तीन बंदों ने मिलकर बनाया। जॉन ब्रैडन, विलियम शॉकले और विलियम ब्रैडन। इन तीन बंदों ने मिलकर ट्रांजिस्टर को इन्वेंट किया। तो ये इसकी थोड़ी सी अलग डिटेल आ जाएगी कि ट्रांजिस्टर बना कब? 1947 में। इसे कहां पर बनाया गया? बेल लैब्स के अंदर। किसने बनाया? इन बंदों ने मिलकर बनाया। अब ट्रांजिस्टर को अगर हम कंपेयर करें हीट के हिसाब से वैक्यूम ट्यूब के साथ, वैक्यूम में हमने पढ़ा था कि एयर कंडीशनिंग वाज रिक्वायर्ड। एयर कंडीशनिंग की जरूरत थी। क्यों जरूरत थी? बिकॉज इट गेट हॉट एंड बर्न आउट। वो गर्म होके जल जाती थी। तो क्या ट्रांजिस्टर गर्म होके जल्दी जल जाते? अगर हम इसे कंपेयर करें वैक्यूम के साथ तो ट्रांजिस्टर भी जलते थे, गर्म होते थे, हीट अप होते थे, लेकिन वैक्यूम ट्यूब की निस्बत वो कम हीट अप होते। फिर मैं एक कंपैरिजन अगर देता हूं कि वैक्यूम ट्यूब जहां पर जिधर लगी हुई है उधर अगर 24 घंटे एयर कंडीशनिंग चाहिए तो जहां पर ट्रांजिस्टर लगे हुए होंगे वहां पर 24 घंटे नहीं 12 घंटे एयर कंडीशनिंग की जरूरत पड़ी है। आइडिया दे रहा हूं कि एयर कंडीशनिंग यहां पर स्टिल रिक्वायर्ड थी, एयर कंडीशनिंग की जरूरत थी, लेकिन अगर पहले 24 घंटे लगातार एयर कंडीशनिंग चाहिए थी तो अब टाइम हाफ हो गया। 12 घंटे एसी वाले रूम में एयर कंडीशनिंग वाला सारा सेटअप ऑन होता और 12 घंटे उसे ऑफ भी कर देते, फिर भी काम हमारा चलता रहता। तो ये गर्म होकर जलते थे, लेकिन वैक्यूम के साथ अगर हम इसे कंपेयर करें तो ये इतनी जल्दी गर्म नहीं होते। तो ये ट्रांजिस्टर का इंट्रोडक्शन है। Computers are second generation.
सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स कैसे थे। पहला पॉइंट अगर हम देखें साइज के हवाले से, वही जो कॉमन पॉइंट्स हैं, तो साइज में हम कंपैरिजन करेंगे इसको फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के साथ। हम बताएंगे स्मॉलर देन computers of first generation, smaller than computers of first generation। ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से साइज में छोटे थे, तो हर जनरेशन को हमने पिछली जनरेशन के साथ कंपेयर करना है। स्पीड के हवाले से हम देखें तो इसमें जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई वो थी ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर की स्पीड वैक्यूम से ज्यादा थी, तो जाहिर बात है फिर सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर की भी प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ गई। फास्टर देन कंप्यूटर्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन, इनकी प्रोसेसिंग पावर पहली जनरेशन के कंप्यूटर से ज्यादा हो गई। पावर कंजम्पशन, साइज में छोटे हुए तो पावर कम कंज्यूम करना शुरू हो गए। जो चीज इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर वैसे भी साइज में बड़ी होती है वो ज्यादा बिजली कंज्यूम करती है, अब ये साइज में छोटे हो गए तो कंज्यूम लेस पावर देन कंप्यूटर्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन। पहली जनरेशन के कंप्यूटर से कम बिजली कंज्यूम करते, प्राइस कीमत में सस्ते हो गए क्योंकि इसमें जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई ट्रांजिस्टर वो कीमत में सस्ती थी। लेस एक्सपेंसिव देन कंप्यूटर्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन। ये पहली जनरेशन के कंप्यूटर से कीमत में बहुत सस्ते थे, कम थे। लैंग्वेजेस इनके अंदर जो इस्तेमाल हुई, हाई लेवल लैंग्वेजेस का भी इस्तेमाल इस जनरेशन के कंप्यूटर में होना शुरू हो गया। हाई लेवल लैंग्वेजेस शुरू में पहले असेंबली और मशीन लैंग्वेजेस इस्तेमाल होती रही, फिर इस जनरेशन में आकर कुछ हाई लेवल लैंग्वेजेस का इस्तेमाल भी शुरू हो गया। इस जनरेशन के कंप्यूटर की एग्जांपल्स, आखिरी पॉइंट हमारा एग्जांपल्स, कोई सी 2 से 3 एग्जांपल हमने लिखनी। IBM 7094, IBM 1400 सीरीज, 2 लिख दे काफी है। CPC 164, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। 3 इनमें से कोई सी 2 अगर आपको आती हैं तो आप लिख सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक है सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। उसी तरह से सेम प्रेजेंटेशन हमने देनी है, पहले हेडिंग टेक्नोलॉजी की, फिर हमने टेक्नोलॉजी को एक्सप्लेन करना है कि वो कैसी थी, उसके कॉमन पॉइंट्स मैंने बताए हुए हैं। तो कुछ बुक में हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल गई साइज के हवाले से और स्पीड के हवाले से, तो वो हमने बीच में मेंशन कर दी। कुछ एक्स्ट्रा बातें, कब बना, किसने बनाया, कहां पर बनाया, ये हमें पता चल गई, वो हमने लिख दी। फिर कंप्यूटर्स ऑफ सेकंड जनरेशन, इसके कंप्यूटर कैसे थे, उनमें लैंग्वेजेस कौन सी इस्तेमाल हुई और एग्जांपल्स क्या है। तो ये हमारा टॉपिक आज कंप्लीट हुआ। कल इंशाल्लाह हम थर्ड जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।